A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter breathing and exchange of gases, and the topic is exchange of gases. So start करते हैं topic exchange of gases. सो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा. स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम अ फ्लैप कवरिंग cartilaginous flap which is present over on the larynx. Here is cartilaginous flap which cover the larynx known as epiglottis. एपीग्लॉटिस. नाउ बिलो द एपीग्लॉटिस, और ये कवर करते हैं किसे, लैरिंक्स पार्ट को. Here his larynx is covered by epiglottis. Now epiglottis से ट्रैकिया अराइज करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्यूब ट्रैकिया. नाउ ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, पर्टिकुलरली इन primary bronchi divided into, here is trachea divided into two part, primary bronchi known as primary bronchi. Now primary bronchi enters into the, here is primary bronchi enter into the lung and divided into secondary, tertiary and quaternary bronchi. Tertiary and primary bronchi. Now primary bronchi is divided into tertiary, secondary and tertiary bronchi. Finally tertiary bronchi converted into bronchioles. Now bronchioles open into the alveoli. Here is primary bronchi divided into secondary bronchi. Now secondary bronchi again divided into tertiary bronchi. Tertiary, then in bronchioles. Here is similarly, here is also secondary, tertiary and bronchioles. Now bronchioles are open into the alveoli. Here is a sac-like structure. Bronchioles open into the alveoli. Similarly, here is also alveoli open into the, similarly here is also open into the alveoli, sac-like structure. Now the lung is covered by the pleural membrane. Here is lung is covered by double membranous structure that is known as pleural membrane, and the pleural membrane is filled with the outer pleural membrane and internal pleural membrane. Now inside the both membrane, pleural membrane, there is a fluid which is known as pleural fluid. Here is pleural membrane, or inside the pleural membrane there is a fluid known as pleural fluid which decreases the friction in between the हार्ट और हार्ट थोरेसिक वॉल, लंग्स और थोरेसिक वॉल में एक जो फ्रिक्शन होगा उन्हें डिक्रीज करते हैं प्लूरल फ्लूइड. अब नाउ इन बिटवीन द लंग्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हार्ट. अब यहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमें सिर्फ लंग्स के बारे में डिस्कस करना है. नाउ हियर इज प्राइमरी ब्रोंकाई कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. हियर bronchi and secondary, then tertiary bronchi. Now tertiary bronchi converted into bronchioles. Now bronchioles open into the alveoli, sac-like structure, alveoli. alveoli.
एल्वेलाई में ओपन हो जाएंगे। नाउ आफ्टर द अब यहाँ पे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा इन बिटवीन द लंग एल्वेलाई इन द और इन द ब्लड कैपिलरीज। सो हियर इज यहाँ पे जो लंग एल्वेलाई है दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट द एटमॉस्फेरिक air enter into the mouth buccal cavity, then from the buccal cavity it via the ये epiglottis open हो जाएंगे। फिर epiglottis after the opening of epiglottis के open होने के बाद here is a flap epiglottis, small flap epiglottis. Now after the opening of epiglottis the air come into the laryngeal part. Now larynx से फिर then trachea और from trachea they are passed into primary bronchi, then from primary to secondary and tertiary और finally ब्रैंक्यूल्स से ये एल्वोलाई में एंटर कर जाते हैं ना। एल्वोलाई में ये जब एटमॉस्फेरिक एयर आ गए तो इनमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे एंटर करते हैं यहाँ पे। सो जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है एयर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कितना है अप्रॉक्सीमेटली 159 mmHg। 159 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 159 mmHg यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इन द एल्वोलाई इज 104 mmHg प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो बिकॉज यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द एल्वुलाई देर इज इन यहाँ पे कंपैरिजन करने में जो एल्वुलाई है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है इन कंपैरिजन टू एल्वुलाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या ग्रेटर है ग्रेटर देन द एल्वुलाई, सो दैट द हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये एंटर कर जाएंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द buccal cavity, then larynx, trachea, primary bronchi, secondary, tertiary bronchioles and finally come into the air sac और एल्वोलाई और एल्वोलाई में और फाइनली ये 104 mmHg प्रेशर आ जाएगा। अब फ्रॉम द एल्वोलाई से ये ब्लड कैपिलरीज में फ्यूज कैसे होंगे और कैसे पूरा कैसे देन टिश्यू सेल्स में ये एक्सचेंज होगा गैसेस का, ये हम डिस्कस ना। यहाँ पे here is lung alveoli in the atmosphere where the partial pressure of oxygen is approximately oxygen is equal to 159 mmHg and the partial pressure of carbon dioxide is equal to carbon dioxide is equal to 0.3 mmHg. Now inside the alveoli the partial pressure of oxygen is equal to 104 mmHg and the partial pressure of carbon dioxide is equal to 40 mmHg. 40 mmHg. Now here is the blood capillaries and heart, four chambered heart, four chambered now here is pulmonary artery, and here is pulmonary vein, now heart, और here is aorta and cell एंड सेल के अंदर। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं। फिर इस पल्मोनरी आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इट एक्चुअली डिक्रीज कर जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 40 mmHg पार्शियल प्रेशर पहुँच जाएंगे 40 mmHg
द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 45 mmHg, क्योंकि ये जो इन द पल्मोनरी आर्टरी देयर इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg, हियर इज 40 mmHg ऑक्सीजन is equal to 40 mmHg and the carbon dioxide is equal to 45 mmHg. Because in the alveoli there is a high concentration of oxygen in comparison to the capillaries which are present in the lungs. So because of partial pressure of oxygen molecule in the alveoli is greater in comparison to the capillaries, partial pressure of oxygen inside the capillaries, so that the always greater pressure से और higher pressure से lower pressure की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे. आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द pulmonary inside the pulmonary artery become greater in comparison to the deoxygenated blood. Here is the blood is in the pulmonary artery, there is a deoxygenated blood in comparison to यहाँ पे क्या हो रहा है pulmonary vein में, क्योंकि डिफ्यूज कर जा रहे हैं ऑक्सीजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएंगे. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर बिकॉज इन द पल्मोनरी आर्टरी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द alveoli, that is 40 mmHg, here is 45 mmHg, so that the carbon dioxide move from high pressure to lower pressure, so that the in blood in the pulmonary vein become oxygenated, because the यहाँ पे क्या होगा डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन गैस का, क्योंकि लो प्रेशर है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड द पार्शियल प्रेशर become increase in comparison to deoxygenated blood. It increases from 40 mmHg to 95 mmHg. प्रेशर की तरफ मूव कर जाते हैं. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड also decreases in comparison to the deoxygenated blood, so the partial pressure of carbon dioxide become 40 mmHg. 40 mmHg हो जाएगा. बिकॉज अब ये ब्लड कैसा है, द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा प्रेशर कैसे हो रहा है, बिकॉज दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. ये यहाँ पे टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन कंपैरिजन टू द with respect to the oxygen molecule और partial pressure of oxygen molecule क्या हो रहा है. देन यहाँ पे partial pressure of oxygen molecule is 40 is equal to 40 and the partial pressure of carbon dioxide is equal to 45. So slightly the blood is deoxygenated blood and the partial pressure of oxygen molecule inside the alveoli is greater in comparison to the capillaries. So the oxygen molecule move from high pressure to lower pressure, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करने लग जाएंगे यहाँ पे. और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा एंड द ब्लड इज फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू द अरोटा, लेफ्ट अरोटा और फ्रॉम इन द लेफ्ट आर्टेरियोल और आर्ट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएंगे. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट पासेस थ्रू और वाया द बाइकस्पिड वॉल्व और इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन इट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट. ये ऑक्सीजनेटेड डिफरेंट सेल और टिश्यूज को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा. हियर इज ऑल्सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 95 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40 mmHg. 40 mmHg. Now because in the cell, here is cell और सेल के अंदर कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया जा रहा है. आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कार्बन को एक एक ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो इनसाइड द सेल द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली ग्रेटर और वो कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 mmHg. सो इनसाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपैरिजन टू द सेल इज स्लाइटली ग्रेटर, दैट इज
सॉरी स्मॉलर, दैट इज 40 mmHg. सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करने लग जाएंगे. हायर जो ऑक्सीजन स्ट्रेस बढ़, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस बढ़ जाएगा ओवर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन पर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने लग जाएंगे सेल में, और सो दैट द जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं डिफ्यूज हो जाएंगे इस सेल में, और यहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा. अब जब ये सेल से पास, इस सेल से पास होंगे वो कितना हो जाएगा 40 mmHg डिफ्यूज हो गए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम हायर 45 mmHg, क्योंकि सेल से होकर आ रहे हैं. सेल्स में हमेशा ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी में से इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन यूज कर लिए जाएंगे इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. बाय द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड diffuses in the blood capillaries, or they increase the partial pressure of carbon dioxide inside the blood capillaries from 40 to 45 mmHg. The partial pressure of carbon dioxide decreases from 40 to increases from 40 to 45, and the partial pressure of oxygen molecule decreases from 95 to 40, because oxygen molecule transported inside the cell for the metabolic activity or for the combustion of glucose molecule. During the all metabolic activities there carbon dioxide release हो रहे हैं, और finally वे ये क्या हो जाएंगे, ये इसी मॉलिक्यूल इसी ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएंगे. नाउ द अब ये जो ब्लड है, ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड. ब्लड कैसा हो गया है अब, deoxygenated, and this deoxygenated blood drain into the right atrium. From right atrium it passes into the right ventricle. From right ventricle through pulmonary artery के थ्रू इसे लंग्स में भेज दिया जा रहा है, जहाँ पे कैपिलरीज में अगेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45. सो ऑलवेज द पार्शियल oxygen move from higher pressure to lower pressure, and carbon dioxide also move from higher pressure to lower pressure. so यहाँ पे gaseous exchange होगा फिर से, क्योंकि diffuse हो रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये इंक्रीज कर जाएंगे इनके प्रेशर इनसाइड द पल्मोनरी वेन, इंक्रीज कर जाएंगे फ्रॉम 40 to 95 mmHg, and carbon dioxide during the whole process gaseous exchange कैसे होगा, because the hemoglobin or RBC main participate in the exchange of gases, or the oxygen molecule bind with the hemoglobin molecule. ये कैसे bind करेंगे, because यहाँ पे सबसे पहले diffusion और exchange कैसे होगा, because in the alveoli the partial pressure of oxygen is higher in comparison to the partial pressure of oxygen in the blood, which is from 40 to here is 104. so oxygen easily diffuses in the blood vessel, or with the blood vessel into the blood, or RBC से oxygen bind with the hemoglobin molecule. Finally the blood becomes oxygenated in the pulmonary artery. Here is pulmonary artery, and this is pulmonary vein. Pulmonary vein. Now in the pulmonary vein the blood become oxygenated. और ये कैसे ऑक्सीजनेशन होगा, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज 40, सो दैट इजिली जो डिफ्यूजन होगा इजिली हायर प्रेशर टू डिफ्यूजेस फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इजिली डिफ्यूज कर जाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम इंक्रीजेज, और ये पहुंच जाएंगे 95 mmHg पर. नाउ दिस the oxygenated blood transmitted into the left atria. Here is right atria, right ventricle, left ventricle. From left atrium
टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड और बॉडी टिश्यूज में ये ट्रांसफर हो जाएंगे ना। ट्रांसफर कैसे होंगे? बिकॉज ऑलवेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं इन द इनसाइड द सेल ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और आफ्टर द ग्लूकोज combustion the carbon dioxide molecule releases ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज हो रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? एक प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा बिकॉज अब प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है ये इंक्रीज कर जाएगा 40 से 45 mg पहुँच जाएंगे। वेयर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड वेसल और इन द blood is 40 mmHg so that higher to lower diffusion of gaseous or carbon dioxide molecule occurs. Now they diffuses with the hemoglobin or plasma or RBC से diffuse कर जाएंगे। Then the blood is known as because the concentration of carbon dioxide increases in the blood so that the blood is become deoxygenated blood। अब ये deoxygenated blood अगेन हार्ट में जाएंगे और हार्ट से फिर पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एल्वोलाई में। अब इसे एक्चुअली में यहाँ पे डिफ्यूज़न हो कैसे रहा है, कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे एल्वोलाई में डिफ्यूज़ कर रहे हैं और कैसे इस ब्लड वेसल में डिफ्यूज़न हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। तो नेक्स्ट डिफ्यूज़न कैरिड आउट बाय द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई एंड द endothelial cell of or endothelium of blood vessel. Here is the endothelium of blood vessel and endothelium of blood vessel. Here is basement substance basement endothelium endothelium here is epithelial cell। now basement substance बेसमेंट सब्सटेंस। अब ऑक्सीजन कैसे एंड द यहाँ पे एपिथेलियम कौन सा है? स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम। जब प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो है 104 mmHg प्रेशर। ये क्या करते हैं? ये ड्यू टू द हाई प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे ऑक्सीजन बेसमेंट सब्सटेंस में ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएंगे इंक्रीज कर जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना फिर डिफ्यूज कर जाएंगे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्योंकि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ये एक स्पेस का फॉर्मेशन कर देंगे। ये स्लाइड अपने पास से अपने जो मेन ओरिजिन है वहाँ से थोड़े ये डिस्प्लेस हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ और अपने ओरिजिनल लोकेशन से ये थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन एंटर कर जाएंगे। हियर इज आरबीसी बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। नाउ ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएंगे इन द आरबीसी वेयर हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। सो हीमोग्लोबिन इज बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे। नाउ बिकॉज हियर इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी ये यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस में आ जाएंगे ना इन द डिफ्यूज कर जाएंगे इन द बेसमेंट सब्सटेंस ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कैसे ये डिफ्यूज कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि यहाँ से सिमिलरली जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ के कंपैरिजन में हाई है तो ऑलवेज हायर टू लोअर डिफ्यूज करें। जो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे वर्क करता है क्योंकि हाई यहाँ पे भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इनका एक प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा और जिसकी वजह से ईजिली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर जाएंगे इन द सब्सटेंस इन द बेसमेंट सब्सटेंस।
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ये इजिली डिफ्यूज कर जाएंगे इन द बेसमेंट सब्सटेंस बिकॉज द यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना है 45 mmHg क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. हियर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40 mmHg. तो अगर कंपैरिजन किया जाए यहाँ से एल्वोलाई को कंपेयर किया जाए विद द blood vessels so that blood in both the pressure of carbon dioxide is slightly increased in or increase फॉर्म में रहेंगे इन द ब्लड वेसल सो दैट दे इजिली डिफ्यूज इन द बेसमेंट सब्सटेंस क्योंकि प्रेशर ब्लड वेसल के थ्रू क्रिएट होगा न कि एल्वोलाई के थ्रू. तो एल्वोलाई में ऑलरेडी जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का इन कंपैरिजन टू द ब्लड वेसल द कंसंट्रेशन ऑफ carbon dioxide molecule in the alveoli is low, slightly low in comparison to the blood vessel so that the high प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे. और ये सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी यही रूल आएगा कि हाई टू लो डिफ्यूज़न यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर बताया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन के पास हाई अमाउंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड सो यहाँ पे इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे इजीली डिफ्यूज इन द एल्वोलाई में डिफ्यूज़न हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे एल्वोलाई में डिफ्यूज और फ्रॉम द एल्वोलाई अब ये कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे इनहेलेशन के थ्रू बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे और एक्सहेलेशन के थ्रू कैसे बाहर जाएंगे ना. हियर इज ऑल्सो the partial pressure of carbon dioxide is atmosphere is equal to 0.3 mmHg. But the partial pressure of carbon dioxide in the lung alveoli is quite greater in comparison to the atmosphere. So easily ये बाहर exhale कर दिए जाएंगे क्योंकि higher to lower चले जाएंगे. Here a partial pressure of oxygen in the atmosphere is 159 mmHg. तो 159 mmHg है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज इन द लंग एल्वोलाई द अगर हम इन रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर और इन कंपैरिजन विद द एटमॉस्फेयर the partial pressure of oxygen molecule is slightly low in comparison to the atmospheric oxygen where where oxygen molecule the pressure of oxygen molecule is 159 mmHg and in the alveoli the pressure of oxygen molecule is 104. So the जो pressure है oxygen molecule है they can easily transport in the lung alveoli by the थ्रू द प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ वर्क करेगा और जिसकी वजह से ये ईजिली यहाँ पे आ जाएंगे ना. इस तरीके से ये गैसेस डिफ्यूज़न होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है जिसमें मेन फंक्शन ये 3 लेयर फॉर्मेशन होता है जो 1 लेयर इज फॉर्म बाय द एपिथेलियम ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द लंग एल्वोलाई एंड 1 लेयर इज फॉर्म बाय द बेसमेंट सबस्टेंस एंड second layer is formed by the basement substance and the third layer is formed by the endothelium membrane of the blood vessel. Now यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करता है फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ के लिए. और आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है दैट्स कैसे प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा बिकॉज द एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर in comparison to the blood vessels so that easily यहाँ से diffusion होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का because the blood is deoxygenated and the partial pressure of oxygen in the deoxygenated blood is 40 mmHg and the partial pressure of carbon dioxide in the deoxygenated blood is 45 mmHg so that they can the oxygen molecule easily diffuses with the RBC or hemoglobin molecule and bind with the hemoglobin molecule then
they are transported through the blood or RBC when they reach to the blood tissue, when they reach to the tissue of the body or different tissue of the body, because always metabolic activity होती रहती हैं टिश्यू में, सो दैट द ऑक्सीजन इज यूज फॉर द combustion of glucose molecule, and carbon dioxide always releases after the combustion of glucose molecule in the decarboxylation process, or after the decarboxylation process carbon dioxide, the number of and the pressure of carbon dioxide increases with the partial pressure of carbon dioxide is become in the tissue is equal to 45 mmHg, and the partial pressure of oxygen molecule is slightly lower because oxygen is used during the aerobic respiration, में और सेलुलर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज कर लिया जाएगा. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिक्रीजेज इन द ब्लड वेसल. द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोथ कितने हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहे हैं. सो द मॉलिक्यूल in the deoxygenated blood become decreases, and the partial pressure of carbon dioxide molecule slightly higher in comparison to the oxygenated blood, that is 45 mmHg. और जब ये पहुँचते हैं near the lung alveoli, so that the partial pressure of oxygen molecule in comparison to deoxygenated blood increases with 104 mmHg, and the due to the higher pressure gradient the oxygen molecule diffuses with the help of these epithelium basement and endothelium membrane, and bind with the hemoglobin molecule, so the blood become oxygenated, and the partial pressure of this oxygenated blood become again for 95 mmHg, and the partial pressure of carbon dioxide molecule again decreases with 5 mmHg. So the total pressure of carbon dioxide in the oxygenated blood become 40 to the 40 mmHg. So इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है. और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के टाइम जो डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज होता है इसी तरीके से होता है, जहाँ पे डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वर्क करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.